أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته my dear youngsters कैसे हैं आप सब मैं ऑडिबल मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को Okay, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yes, I am also good, Alhamdulillah. Okay, so today's topic is the growing fitness of the world, right? Just let me share my screen, just a minute. So, इससे पहले कि we'll start, I want you to share your points on this topic because it is a discussive session. So, what do you feel about it? So, you can inshallah share your own points. What is your opinions about the fitnas? What do you think today's fitnas are all these? Yes. आप लोग माइक भी अनम्यूट कर सकते हैं. You can inshallah unmute your mic and then answer. It's completely up to you. You can write in the chat box. Okay, Laiba has some sort of difficulty. Okay. No worries. Yes, Manal or Hadia or Zaina or Laiba, anyone who can inshallah tell what do you mean by the fitnas and what are the current fitnas that we are dealing with, right? Because we all know the addiction. Okay, yes. Sure, Zaina. I'm giving you the option to unmute yourself. Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes. Okay. The word fitna means a test or trial Hmm. or a chaos. Basically, in Islam, it refers to a situation that tests a person's faith, morality, or patience. Yeah, great. Okay. And well, you asked that what are all the fitnas we are facing? Hmm. Fitna of faith, iman. Hmm. There is doubting Allah subhanahu wa ta'ala, Hmm. Islam or the unseen, Hmm. losing trust in divine plan during hardships, being influenced by false ideologies or mockery of religion. Second can be related to wealth, greed, showing off luxury, earning Hmm. through haram means and all that. Hmm. Then there is ilm, fitna of knowledge, ilm. Hmm. So, in that case, there is arrogance because of education or Islamic knowledge. Then there are many more fitna of family in relationships, power and leadership, society and social media. The biggest thing, people go around wanting validations, and then they are losing sincerity and Hmm. inner peace, Hmm. and many more like this. Great, mashallah. Barakallahu feek. Allahumma barik. It was amazing. You explained very well. Okay, Manal, would you like to speak? Yes, Manal. I'm giving you the option to unmute yourself.
Yes, Manal, are you able to listen to me? Am I audible? Okay, I think because we have less time, we have to complete it. So let's proceed further. So basically, yes, as Zaina told that, yes, Walaikum Assalam, Manal. Okay, so the question is that what are fitnas and what are the fitnas that you think are growing in today's world? Now, are you able to listen to me? I don't know what the issue is. Okay, in last, inshallah, we'll discuss, but now we'll proceed with our session. So, yes, as Aina told that fitna is sort of a trial or tribulation of faith, right? हमारी इस ईमान की जो है वो आजमाइश होती है एक्चुअली, राइट? अल्लाह पाक हमें टेस्ट करता है एक तरीके से। फितना जो है ना, उस वो एक आपके ईमान का टेस्ट होता है कि मतलब आपको उस ट्रायल्स में कैसे अपने आप को उस फितने से बचाना है, ठीक है? एंड देयर आर लॉट ऑफ फितनास जो कि आई वोंट से कि एक लेक्चर में कंप्लीट हो पाएंगे, बट स्टिल जो मेन है, बिकॉज टुडेस यूथ जिस चीज से मुतासिर हो रही है ना, ये तो जैसे फितनास है ही। लाइक अल्लाह पे भरोसा नहीं करना, दिस इज द ग्रेटेस्ट आई वुड से द ट्रायल एंड ट्रिबुलेशन, इसलिए कि मतलब हमारे स्कूल्स में या फिर हमारा एनवायरनमेंट ऐसा बना दिया गया है जहां पर जो है ना, बच्चों को ये लगता है कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन देयर ओन हैंड्स। इवन अगर आप स्कूल में देखो तो बच्चे ये समझते हैं कि अगर मेरे अच्छे मार्क्स आए, इट इज बिकॉज ऑफ मी, इट इज बिकॉज मैंने मेहनत की। दे डोंट बिलीव इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। दे से ओके वी आर मुस्लिम्स, वी हैव सेड ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बट उसके बाद भी ना उन्हें ना ये चीज नहीं होती बेसिकली। they don't actually have the trust in Allah subhanahu wa ta'ala, ठीक है? The second thing is the greatest of fitna is the relationships, the haram relationships, जो कि I would like to talk about very openly and casually। मुझे आपसे बहुत openly कहना है कि although I know, I hope you all are in girls school or quid, आप मुझे बताएं आप कौन से schools में? Are you in quid or only girls school? Yes, आप chat box में लिख सकते हैं। In which school do you study? A co-ed school or the girls' school? Hurry up, we have less time and we have to complete it. Kindly respond soon. Hadia, Manal, Saria, Ada. Which sort of school do you study? Okay, Manal is in girls' school. Ada, in which school do you study? Saria is also in girls' school. Good, mashallah. Okay. Hadia and Ada, do you study in co-ed or only girls' school? Yes, I know you are in Greenwood. So it's co-ed, right? Yes, I know. And Hadia? हादिया इज ऑल्सो इन कोएड। ओके, सो बेसिकली आप मोस्टली जो है दो दो तीन बच्चे यहाँ पर कोएड स्कूल में, राइट? एंड व्हेन यू आर इन सच अ स्कूल जहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, देखिए साइंटिफिकली ये बात प्रूवन है, ठीक है, कि बिटवीन द एज ऑफ 11 to 18 ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्ट ईच अदर। ये बात बहुत क्लियर है और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं, बिकॉज इस एज में आपको ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं, ऐसे ऐसे आपके माइंड में वसवसे आते हैं कि यू एक्चुअली फील लाइक कि मतलब आपको ना एक तरीके से घबराहट सी होती है कि वाई आई एम थिंकिंग सच, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मेरी फिर सोच ऐसी क्यों हो रही है? तो इस एज में इट हैपेंस, टेक इट इजीली। लेकिन अच्छा, अब आप ये सोचेंगे ठीक है बहुत से अट्रैक्शन हो जाता है, तो उस पे क्या किया जाए? इवन आपके कजिन्स में भी अट्रैक्शन हो जाता है आपको अपने कजिन से भी, अगर आप गर्ल्स स्कूल में भी पढ़े हो, बट इवन यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कजिन्स, राइट? तो इट्स ऑल कॉमन, फिर इसको इजीली ले। लेकिन उसके बाद आपको अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है? देखिए,
इफ यू आर रियली रियली सिंसियर विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, अगर वाकई आपको लगता है कि यू ही इज वर्दी ऑफ यू, है ना, तो यू कैन व्हाट यू कैन डू इज व्हेन दिस राइट टाइम, व्हेन यू आर देयर, लाइक व्हेन यू हैव द व्हेन यू विल बी मैरिंग, व्हेन यू विल बी चूजिंग अ लाइफ पार्टनर फॉर योरसेल्फ, तब आप ऐसा करें कि अपने पेरेंट्स को बता दें। इवन लविंग समवन इज नॉट बैड, किसी से मोहब्बत करना बुरा नहीं होता, आप उसको किस तरीके से जो है चैनलाइज करते हो, किस तरीके से आप उसको हासिल करते हो, दैट मैटर्स। सबसे पहली चीज तो अल्लाह पाक से हमेशा अपने लिए खैर मांगी दुआओं में, बिकॉज नसीब इज समथिंग जो कि बहुत ज्यादा लड़कियों के लिए, लड़के के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप अल्लाह पाक से अच्छे नसीब की और खैर की दुआ मांगे, अल्लाह पाक में बेहतर हो वही जो है आपके लिए अल्लाह ताला अता करे। दूसरी चीज ये है कि आप अपने पेरेंट्स से इस बात को शेयर करें। आप कभी भी हराम की तरफ नहीं जाए कि आप जो है प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स में आ रहे हैं, या फिर आप जो है उनसे चैट्स कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। देखिए, अपनी डिग्निटी को हमें खुद मेंटेन करना होता है। आप किसी के खातिर नहीं, अपने अल्लाह ताला के खातिर करिए कि अल्लाह पाक ने मना किया है। देखिए, अल्लाह पाक ने पूरा सिस्टम बनाया है, इसका रीजन ये है कि मतलब आगे जब चल के इंसान की आपस में मोहब्बत डेवलप हो सके। बट अल्लाह ताला ने इसको आपको हलाल का एक तरीका दिया, दैट इज निकाह, राइट? सो वेन एवर यू फील लाइक स्टक इन समवेयर, इन दीज डेल्यूशनल थॉट्स और इन दीज थिंग्स कि भाई आपको किसी कोई पसंद आ गया एंड यू आर फीलिंग लाइक के मतलब दैट इज द बेस्ट पर्सन फॉर मी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रे, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला अगर वो आपके हक में बेहतर है तो वो आपको मिल जाए। बिकॉज आई हैव सीन पीपल कि there are a lot of people, even 9th 10th के बच्चे, in even in our schools, they are like attracted to the opposite genders, and it's easy, बस and take it easy and it's common, there is nothing to worry about। बस इसमें ये है कि आपने ना उस तरीके को कभी भी गलत राह पे नहीं जाना, उस आपने गलत तरीके से उसको हासिल नहीं करना, राइट? दूसरी चीज ये है कि अगर अच्छा ऐसा भी होता है कि हम, यही एक और फितना है कि अगर आपको वो चीज ना मिले जिसकी आपने ख्वाहिश की हो, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी इंसान की ख्वाहिश की हो और वो इंसान आपको नहीं मिले, फिर आप क्या होते हैं, डिसहार्टेंड हो जाते हैं। फिर आप सोचते हैं कि अल्लाह ताला सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, वाई मी, वाई एम आई, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे क्यों वो शख्स नहीं मिला, वो शख्स क्यों किसी और को मिल गया। तो देखिए, ये होता है नसीब का खेल, ये होता है अल्लाह ताला की मशीयत, अल्लाह ताला की मर्जी होती है। और यही आपको हर हाल में जो है वो अल्लाह पाक की मर्जी में जो है वो राजी रहना होता है। आप हराम रिलेशनशिप्स में जाएंगे, जितना आप जो है वो हराम से अपना पार्ट ले लेंगे ना, उतना आपका हिस्सा हलाल से कम होता जाएगा। रिमेम्बर दिस, आपका उतना हिस्सा जो है वो हलाल से कम होता जाएगा। और यकीन मानिए, अगर हलाल से हमारा हिस्सा कम हो गया ना, फिर जिंदगी में मजा नहीं रहता। फिर क्या होता है, रब्बा कुरान में कह रहे हैं, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, कि द वन who disobeys me or who turns away from my remembrance will have a miserable life। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मतलब ठीक है वो जी रहे हैं, वो जिंदा है। इवन आप एक्ट्रेस को देखिए, एक्ट्रेस को देखिए, आपको लगता है ना कि उनकी जिंदगी कितनी सुकून की है, राइट? उनके पास फेम है, वेल्थ है, स्टेटस है। मतलब कभी उनसे पूछिएगा कि वो जो है ना, उनकी रूह जिंदा नहीं है, वो आप एक जिस्म की मानंद है, सिर्फ उनके पास जिस्म है। और वो जिस्म भी उनका ऐसा है कि उनको, क्योंकि उनकी रूह तो मर चुकी है, तो उनको सुकून नहीं मिलता, बिकॉज रूह तो आपको सुकून देती है, राइट? तो उन्हें सुकून नहीं मिलता। और उसके बाद क्या होता है, वो अपने आप को मार रहे हैं, वो बेसिकली ड्रग्स लेते हैं, वो क्या क्या चीजें नहीं लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो आप ये देखें कि इतने बड़े बड़े लोग जिनकी ख्वाहिश हम करते हैं, है ना, बल्कि हमें नहीं करना चाहिए, हमारे आइडियल वो नहीं है, बट स्टिल हम इंसान है, तो उनकी ख्वाहिश हम करते हैं कि हमारे आगे हमारे पास भी उनकी तरह का स्टेटस हो, उनकी तरह की वेल्थ हो, राइट? तो आप उनसे पूछें, कभी उनकी जिंदगी के बारे में पढ़ें, तो वो आपको बताएंगे कि दे एक्चुअली वो अपने आप को मार रहे हैं ड्रग्स से। सो अंडरस्टैंड दिस, कि जिंदगी में जो है ना, खुशी तभी मिलती है जब आप अल्लाह ताला की बताई हुई राह पे चलते हैं, जब आप अल्लाह ताला की बताई हुई अहकाम पे चलते हैं। उसके अलावा खुशी कहीं नहीं है, कुछ भी हो जाए, आप चाहे खुशी जो है वो पैसे में ढूंढ ले, स्टेटस में ढूंढ ले, नहीं नहीं है। और जब आप दीन पे चलते हैं ना, जब आप अल्लाह पाक की बात मानते हैं, अल्लाह पाक की रजा के लिए गुनाहों से बचते हैं, इन फितनात से बचते हैं, इन फितनात के टाइम में अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपने आप पे बंद बांध के रखते हैं, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी आसान हो जाती है, हर चीज आसान हो जाती है।
फिर क्या होता है, फिर आपको खुद ब खुद इज्जत मिलती, इतनी इज्जत मिलती है कि आप हैरान होते हैं कि मेरी किस नेकी का सिला है। दूसरा एक और फितना है म्यूजिक। अच्छा, म्यूजिक में आजकल चले, म्यूजिक तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता ही है कि म्यूजिक इज द अल्कोहल फॉर द सोल। लेकिन अब एक और बड़ा फितना है कि वोकल्स, म्यूजिक को हटा के वोकल्स, इवन आई वाज सो एडिक्टेड टू वोकल्स। तो वोकल्स में देखिए, जो मैंने समझ रही हूँ मैं, जो मुझे लगता है वो ये है कि वोकल्स की बुनियाद किस चीज पे रखी गई है, म्यूजिक पे। एंड म्यूजिक की बुनियाद तो हराम पे रखी गई थी ना, वो सॉन्ग तो उसमें से अगर आप म्यूजिक वाला पार्ट हटा भी दें तो उसकी बुनियाद किस पे रखी गई थी, हराम पे रखी गई थी ना। ऑब्वियसली बात है, अब अल्कोहल ने, अल्कोहल में आप ये करें कि जो शुगरी पार्ट है उसका, जो शुगर उसमें ऐड की गई है वो तो हलाल है, उसको निकाल लेते हैं हम अलग से, बट उसमें कहीं ना कहीं हराम की तो आमेजिश है ना, हराम की मिलावट है। तो सिमिलरली वोकल्स भी आपके माइंड को बहुत इफेक्ट करते हैं। ठीक है, वोकल्स एक तरीके से सॉन्ग्स के मतलब एक तरीके से ये है कि आप हराम से बचने का तरीका जरूर है, बट उसकी बुनियाद तो हराम पे रखी गई है। खुद सोचें आप, है ना। और फिर क्या होता है, वो वोकल्स आपके माइंड, आपको इतनी जल्दी कुरान याद नहीं होगा, जल्दी आपको वोकल्स याद हो जाते हैं, और फिर वो वोकल्स आपके माइंड में क्या करते हैं, वो आपके माइंड में घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, और फिर आपको जो है वो नमाज में डिस्ट्रैक्ट करते हैं। राइट, जब आपकी जबान से दुआएं और कुरान निकलना चाहिए तो आपकी जबान से क्या निकलता है, वोकल्स निकलते हैं, राइट। तो इसलिए आई वुड से कि आप वोकल्स नहीं सुने तो बेहतर है। दैट इज समथिंग कि जो बहुत हार्मफुल है। इवन वो क्या करते हैं ना, आपकी नमाजों को बिल्कुल बदमजा कर देता है, आपकी नमाजों में कोई मजा नहीं रहता, फिर यू लाइक फील लाइक कि मजा नहीं आ रहा, नमाजें बिल्कुल खाली खाली सी हो जाती है, और आपकी जबान से सिर्फ वोकल्स निकलते हैं। जहाँ कुरान निकलना चाहिए, जिस जबान से कुरान की तिलावत होना चाहिए, उससे क्या हो रहा है, आपके पास वोकल्स हो रहे हैं आप, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है अपने आप को इस चीज से भी प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि जो है ड्रामास, आई होप पाकिस्तानी ड्रामास हो, टर्किश ड्रामास हो, दीज आर ऑल वेस्टेज ऑफ टाइम। सबसे बड़ा तो टाइम में बहुत वेस्ट करते हैं। दूसरी चीज अगेन यही वही चीज है कि आपकी आंखों का बेपर्दगी हो रही है। और मोस्टली ड्रामास होते किस चीज में, लव, रोमांस, ऑल दीज थिंग्स, है ना। ड्रामास का बेस ही यही बना दिया है। अगर कहीं ड्रामास को ये हो कि भाई इंसान कुछ सीखे, तो एक वक्त तो इंसान वो देख भी सकता है, लेकिन आप यही देखें कि कोई भी ड्रामा ले लिया आप पाकिस्तानी, क्या है वो सब, सब या तो वो न्यूडिटी पे बेस्ड है, पोर्नोग्राफी है उसमें, उसमें आप ये देखिए कि रोमांस दिखाया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, आपका माइंड डर्टी हो जाता है। आपका जो माइंड है ना, फिर आप मतलब आपके माइंड में ऑटोमेटिकली ऐसे थॉट्स आते हैं जो कि क्या होते हैं, इस तरीके के होते हैं कि मतलब रोमांटिक थॉट्स हैं, और इसी वजह से जो आप देख रहे होते हैं ना, फिर आपका दिल चाहता है कि आप वो परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में। तभी तो ये हराम रिलेशनशिप्स बनती है। क्यों? अगर एक लड़की जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख रही है, लेकिन वो ड्रामा देख रही है, तो उसके अंदर भी तो टेम्पटेशन है, उसके अंदर भी तो डिजायर्स है ना, अल्लाह पाक ने डिजायर्स उसके अंदर भी रखी हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, वो डिजायर्स क्या होंगी, उसकी जागेंगी, ऑब्वियस सी बात है, फिर वो हराम की तरफ जाएगी लड़की। तो इसलिए आपको अपने आप को ड्रामास से भी प्रोटेक्ट करना है, ड्रामास हो, रोमांटिक नॉवेल्स हो, बिकॉज दे आर वेरी वेरी हार्मफुल फॉर योर माइंड। और इसके अलावा बहुत सारी फितनास, बहुत ज्यादा फितनास है जो कि मैं शायद डिस्कस नहीं करिए, बट मेन कितना यही है कि म्यूजिक है, ड्रामाज है, हराम रिलेशनशिप, अगर आप इससे बचेंगे ना, बिकॉज अगर आप इससे बचेंगे, आप बस इन सब से बचाइए कि आप किसी हराम जो है वो रिलेशनशिप में मत जाइए। म्यूजिक से अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए, वोकल से प्रोटेक्ट रखिए, म्यूजिक की, सॉन्ग्स की बेसिकली, ड्रामा से, रोमांटिक नॉवल से, तो आप खुद देखेंगे कि आप ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ बड़ी पुरसुकून हो जाएगी सारी। अगर कोई भी चीज आप इसे साइरा ने बताया था कि अल्लाह पाक से हम बदगुमान हो जाते हैं, हमारी जो फेथ है वो डगमगाने लगती है, राइट। तो वो इसीलिए होता है बिकॉज वी गो फॉर समथिंग दैट वी कैन, दैट हार्म्स अस, राइट। ऑब्वियस बात है, हम कब डिसाइडेड होंगे, जब हम जैसे हम फॉर एग्जांपल हमें कुछ चाहिए, कोई इंसान चाहिए, कोई चीज चाहिए, तो वो हमें नहीं मिलेगी। और बेसिकली अब आप नॉवेल्स देखें या ड्रामास देखें तो उसमें ये दिखाया जाता है ना कि मैं तो जिंदगी में आज तक कुछ खोया नहीं है, राइट। इस तरीके के डायलॉग्स वगैरह होते हैं कि भाई मैं तो हमेशा फाते रहा हूँ, मुझे तो कोई चीज ऐसा है ही नहीं कि कोई चीज मुझे ना मिले। तो ऑल दीज थिंग्स यही आपके माइंड को डर्टी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज है, ये जो हमारे अंदर, और एक और चीज पोर्नोग्राफी,
दैट इज समथिंग आई वुड से पोर्नोग्राफी एंड न्यूडिटी सबसे बुरी चीज है, राइट सब बड़े बड़े फितनास है ये। इवन एक कोट है कि अगर आपको किसी कौम को किसी नेशन को तबाह करना है विदाउट अ वॉर, तो आप उस जनरेशन में न्यूडिटी और पोर्नोग्राफी को आम करते हैं, और आज यही तो हो रहा है। अडल्ट्री आम हो रही है, जिना हमारी जनरेशन में आम हो रहा है। द रीजन इज बिकॉज this is all the propaganda of Yahudis, of all of non-believers. तो जब आप जो है अपने दीन पे कायम रहेंगे तो आप जो है जिंदगी दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। सो यू हैव टू होल्ड ऑन टू ऑल दीज थिंग्स। आपने जो है इस आपने जो है ना अपने आप को इन सब चीजों से अपने आप को बचा के रखना है इन सब चीजों से, ठीक है। सो दीज वर सम इम्पोर्टेंट फितनास। इफ यू वांट टू हैव एनी अदर पॉइंट देन इंशाल्लाह यू कैन। कोई और फितना जो आप शेयर करना चाहें तो इंशाल्लाह आप कर सकते हैं। यस हादिया एंड अदा एंड सारिया, आप लोग अपने बताएं ओपिनियंस। आप लोगों ने नहीं बताए थे तो आप लोग काइंडली अपने ओपिनियंस बताएं। यस हादिया, आई एम गिविंग यू द ऑप्शन टू अनम्यूट योरसेल्फ। आप प्लीज बताएं, ठीक है। यस हादिया, आप अनम्यूट करें अपने आप को, फिर आप चैट बॉक्स में लिख दें, ठीक है। तो आप मुझे बता दें चैट बॉक्स में कि आप चैट बॉक्स में लिखेंगे या फिर आप जो है उस पे लिखेंगे। फिर आप बोलेंगे, आप मुझे बता दें, ठीक है। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। देन आई कैन आस्क अदा। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी जो है आप जो मैंने फितनास आपको बताए हैं, अगर उनमें से कोई भी फितना जो है वो बचा है तो आप इंशाल्लाह वो डिस्कस कर दीजिए, ठीक है, ताकि और लोगों को भी पता चले। जो क्योंकि हर 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 किसी का माइंड जो है वो एक नई तरीके से परफॉर्म करता है, तो हर कोई न्यू न्यू आइडियाज के साथ आता है, राइट। Ada's question is, can we see serials? Not much, but अच्छा अदा, एक क्वेश्चन है मुझे। जहर हम जो है वो एक बार में खा लें या थोड़ा थोड़ा करके रोज रोज खाएं तो असर तो पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। वही चीज है। ये जो ड्रामास है ना, दे आर लाइक पॉइजन, दे आर स्लो पॉइजन। आप इसको एक दिन कंज्यूम करोगे, अगले दिन जो है ना आपको और ख्वाहिश होगी, आप और ज्यादा देखना चाहोगे। फिर आपको एक तो डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा होगा नमाज में, कुरान में, फिर आपकी अपनी स्टडीज में बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होगा। तो दिस इज समथिंग कि आपको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा आप इस्लामिक लेक्चर सुनो। मैंने आपसे कहा ना कि जितना आप अपना हराम में से हिस्सा ले लोगे उतना आपका हलाल में से कम होता जाएगा। जितना हम म्यूजिक में से अपना हिस्सा ले लेंगे तो हमें नात में कोई मजा नहीं आएगा, नशीद में कोई मजा नहीं आएगा। इसी तरीके से जितना हम जो है ड्रामाज में से अपना हराम का हिस्सा ले लेंगे फिर हमें जो है वो उसमें कोई मजा नहीं आएगा, क्या बोलते हैं, इस्लामिक लेक्चर सुनने में या फिर कुरान पढ़ने में, नमाज पढ़ने में। ऐसे सिमिलरली अगर हम जो है वो हराम से मतलब रिलेशनशिप से मजा ले लेंगे अपना, पहले सब कुछ कर लेंगे, हम हराम सारे हराम काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो जो बाद में हमें थोड़ा बहुत हलाल मिलेगा, बाद में हमारा कोई हमें कोई और इंसान मिलेगा, हमारा निकाह होगा जिस इंसान से, तो फिर वो मजा नहीं रहेगा। फिर आपका वो हिस्सा कम हो जाएगा, फिर वो बरकत नहीं होगी, फिर वो आपके लिए काफी नहीं होगा। दिस इज समथिंग कि वो एक तरह स्लो पॉइजन की तरह काम करते हैं। ड्रामास हो, म्यूजिक हो, वोकल्स हो, सब कुछ दे आर लाइक स्लो पॉइजन। इवन मुझे भी वोकल्स की इतनी एडिक्शन है बिकॉज, बट देन आई वाज थिंकिंग वन डे बिकॉज अनएक्सपेक्टेडली मुझसे क्या होता था कि आई वाज सिटिंग एंड आई जस्ट स्टार्टेड दैट सेइंग दोज वोकल्स। आई यूज्ड टू स्टार्ट सिंगिंग दोज वोकल्स। एंड ये सब क्या था, अनइंटेंशनली था, कोई मैं इंटेंशनली नहीं करी थी। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीज फिक्स हो जाती है। तो इसलिए डिड यू गेट इट। थोड़ा मुश्किल होगा स्टार्टिंग में, आई नो, लेकिन जब अल्लाह पाक के खातिर इंसान को छोड़ता है ना
तो फिर बहुत ज्यादा उसको अज्र भी मिलता है। फिर अल्लाह पाक उसको उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव देता है। ओके सारिया, बेटा आप बताइए। आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, आपको अपने कुछ पॉइंट डिस्कस कीजिए, वी हैव 5 मिनट्स इस मीटिंग को एंड होने में। सो Okay, so matlab, I need to ask ki what are the alternatives that we can use to stop ourselves from the attraction of haram? ओके, ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। अगर हम हमने जो आज डिस्कस करे हैं, फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक, ठीक है, सॉन्ग्स। सॉन्ग्स के अलावा हमारे पास नशीद्स हैं, राइट, अरबिक नशीद्स हैं, इंग्लिश नशीद्स हैं। तो आप वो सुन लीजिए, वो आपका ऑल्टरनेटिव है। एंड इवन नशीद में बड़ा कामिंग होती है, आपने सुनी होंगी, बहुत सारी नशीद्स होती हैं, दे आर वेरी वेरी कामिंग, ठीक है। दूसरी चीज ये कि अगर ड्रामास है, ड्रामास की जगह आप डॉक्यूमेंट्रीज देख लें, ठीक है, इस्लामिक हिस्ट्री की डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, ठीक है, या फिर इस्लामिक कुछ जैसे ना इस्लामिक फिल्म्स बनती हैं, जैसे आई गेस वो जो अब्दुल बारी वाला चैनल है, तो उसपे आई गेस कुछ बच्चों की बच्चों से रिलेटेड कुछ इस्लामिक फिल्म्स बनाई गई हैं, मूवीज जैसे यूथ क्लब की होती है, आप वो देख सकते हैं। वो एक ऑल्टरनेटिव है, गुड ऑल्टरनेटिव है वो, उसमें आप कुछ सीखेंगे भी और आपका ऐसा कोई हराम भी नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप बात करें रिलेशनशिप्स की, तो उसका ऑल्टरनेटिव ये है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, ठीक है। अपने आप पे बस आप अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे हराम से बचाए, ठीक है। हमेशा अल्लाह पाक से दुआ करते रहें। और जब भी आप कहीं एक्चुअली अगर आप कुवैत में ना भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपके घर में कभी कोई कजिन्स हो या फिर कोई भी आपके नाम महरम हो, ठीक है, तो उनसे आप बात कीजिए बेशक, लेकिन आपकी बात हमेशा रेस्पेक्टफुल होनी चाहिए, ठीक है। हमेशा आपकी बात कैसे रिस्पेक्टफुली बात करें, ठीक है। इज इट क्लियर सारिया? जी। ओके। ओके, हादिया ने लिखा है लाइक फितना ऑफ फेम आज की दुनिया में बहुत छुपा हुआ फितना है। सोशल मीडिया ने हर इंसान को एक स्टेज दे दिया है। लोग अपनी आवाज, अपना चेहरा, अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं, लेकिन असली जिंदगी अंदर से खाली होती जा रही है। यस, इट इज ऑल्सो अ फितना। कि आप ये देखें कि बेसिकली क्या होता है, कि लोग जो है ना, मतलब ऐसा है कि जो लोग है ना बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो मतलब अपना सब कुछ दिखा रहे हैं। एंड देन एवल आई इज ऑल्सो वेरी रियल। तो एवल आई क्या होती है, उनको हार्म करती है, तो वो क्या, फिर वो परेशान होते हैं, राइट। और इसमें क्या है, इसमें ना इंसान जो है ना, वो अपना सब कुछ पर्सनल लाइफ सब कुछ दिखा रहा होता है। सो ये एक बहुत बड़ा फितना है, आई कैन अग्री। जो फेम का, राइट, अपने आप को दिखाना, हर चीज करना, दैट इज समथिंग आई वुड से कि बहुत बड़ा फितना है। देखिए, अगर आपकी नियत ये, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी चीज अपने स्टोरी पे या फिर अपने स्टेटस पे शेयर करो, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज, अगर आप अपना कोई भी अचीवमेंट या फिर आप अपना कोई भी तरीके का कोई भी चीज शेयर कर रहे हो, अगर आपका मकसद ये है कि उससे और लोग इंस्पायर होकर वो काम करें, तो वो दैट इज गुड। आपकी नियत मैटर करती है। लेकिन आप ये है कि लोग आपके लाइक्स करें, कमेंट्स करें, दैट इज समथिंग जिससे हमें बचना चाहिए। ओके, ग्रेट, माशाल्लाह हादिया, ग्रेट, अमेजिंग। ओके, अदा ने लिखा है कैन वी सी कार्टून्स। कार्टून्स ठीक है, देख सकते हैं, बट उसमें मैं इतना जो है वो नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, उसमें भी उलमा का है कि रिस्ट्रिक्शंस है उलमा के। उलमा कहते हैं कि ना देखें तो बेहतर है। हादिया का क्वेश्चन है, सीरियस ऑल्सो पार्ट ऑफ पोर्नोग्राफी। देखिए, पोर्नोग्राफी मीन्स जिसमें बेसिकली पीपल आर विद नेकेड बॉडी, राइट, डोंट वेयर क्लोथ्स। पोर्नोग्राफी में तो नहीं आएगा, बट उसमें भी ऐसे कहीं ना कहीं कुछ, जैसे आई वोंट से कि पाकिस्तानी सीरियल्स में तो ऐसा नहीं है कि उनके कपड़े बेहुदा हों, बट हाँ अदर सीरियल्स में ऐसा होता है कि उनका जिस्म वासे होता है, राइट। तो वो तो पोर्नोग्राफी में कहीं ना कहीं आएगा। बट फिर भी सीरियल्स में क्या है, देखिए, अगर सीरियल्स कहीं ना कहीं कुछ फायदेमंद हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसे तो कोई सीरियल याद नहीं आ रहा जो कि वाकई में फायदेमंद हो, बट स्टिल होते हैं कुछ, जैसे आई डोंट रिमेम्बर, बट हाँ मोस्टली रोमांटिक होते हैं। मोस्टली में क्या होता है, वो उससे मोहब्बत कर रहा है, वो उससे, इससे बस आपका माइंड बहुत ज्यादा डर्टी हो जाता है। तो पोर्नोग्राफी में तो एग्जैक्टली नहीं आएगा, बट स्टिल इट हार्म्स योर माइंड, है ना। दिस इज समथिंग जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए। यस, तो कार्टून्स चले आप देख सकते हैं अभी, क्योंकि हमें पता है कि हमारा ईमान लेवल अभी इतना स्ट्रांग तो नहीं हो सकता है कि बार में कि हम जो है वो सब कुछ छोड़ दें।
हल्की हल्की करके देखिए। अगर आप पहली बार में म्यूजिक कम करें, फिर ड्रामास, एक साथ हम कुछ नहीं कर सकते, छोटे छोटे स्टेप्स लें। एक बार में सब छोड़ेंगे तो फिर मुश्किल लगेगा, फिर जो है इस्लाम बोझ लगेगा, ठीक है। तो इसलिए डोंट डू सच वे। Yes, Hadia, what's your question? Sinfe Ahan is one of the serial that motivates one to move on. Yes, Sinfe Ahan, I know it is written by Umaira Ahmed. उमैरा अहमद की जो सीरियल्स है मैं कहती हूँ वो आप लोग देख सकते हैं, जैसे अलिफ है उनका सीरियल, वो भी आप देख सकते हैं, बिकॉज इट इज समथिंग जो बहुत अच्छा है। अलिफ है उनका, और आई गेस जिंदगी गुलजार है भी उनका है आई गेस। जो उमैरा अहमद के सीरियल्स है, हाँ हम कहाँ के सच्चे थे, यस, उनकी नॉवेल्स बेस्ड नहीं है, तो उस तरीके का आप देख सकते हैं। बट उसमें भी है कि वक्त का जिना है, वक्त वेस्ट होता है, तो इसलिए तो वो भी ना देखिए। बट हाँ ठीक है, स्टार्टिंग है, हर चीज इतनी आसानी से नहीं छोड़ से सकते, तो